Good morning. I am Dr. R.K. Agarwal, your maths teacher. Today we will see exercise number 3.3, question 1 to 15. This is trigonometric functions. You have seen all the formula and these questions are basically related to those formula, connected to those formula. So if you see question 1, prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus 10 pi by 4 is equal to minus 1 by 2. So we will put the values. I have put the values of pi 6, pi 4, pi 3 and pi by 2 for sin theta, cos theta and tan theta in a table. Now if you put sin pi by 6 is 1 by 2 square, then cos square pi by 3 is again cos is 1 by 2 square and 10 pi by 4 is 1, so is 1. So 1 by 2 whole square plus 1 by 2 whole square minus 1 works out to be 1 by 4 plus 1 by 4, 1 by 2 minus 1 is equal to 1 by 2. So this way this is proved. Then second is 2 sin square pi by 6 plus cosec square 7 pi by 6 dot into cos square pi by 3 is equal to 3 by 2. Here cosec square pi by 6 we do not know the value, so we will change it to 6 pi by 6 plus pi by 6. ये 7 pi by 6 हो गया. और इसे देखते हैं, ये क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी जैसे हम जानते हैं फॉर्मूला से. सो 2 sin square pi by 6 is equal to 2 into 1 by 2 whole square pi by 6 over 1 by 2 whole square plus cosec square pi by 6 का माइनस cosec pi by 6 हो जाएगा स्क्वायर इंटू 1 by 2 square cos square pi by 3. Cos square pi by 3 is 1 by 2 square. So this way 1 by 2 plus minus 2 cosec pi by 6. Cosec pi by 6 is sin pi by 6 inverse. So that will be minus 2 whole square into 1 by 4 is equal to 1 by 2 plus 4 1 by 4, that will be 3 by 2. So this solves the question 2. Then question 3 is cot square pi by 6 plus cosec 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6 is equal to 6. That we have to put the values of cot square pi by 6. Cot is inverse of 10 and pi by 6 is 1 by root 3. So this will be root 3 square plus cosec 5 pi by 6 को हम 6 pi by 6 माइनस pi by 6 करें तो भी ये 5 pi by 6 होगा. और ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो दिस विल बी वैल्यू विल बी पॉजिटिव. सो cosec pi by 6 plus 10 square pi by 6. 10 square pi by 6 is 10 pi by 6 is 1 by 3. So 1 by 3 square and this is multiplied by 3. So 1 by 3 into 3 is square root of 3 works out to be works out to be 1. So 3 plus 2 cosec pi by 6. Cosec pi by 6 is sin inverse of sin pi by 6 and that is 2. 1 by 2 का inverse होगा 2. 3, 2, 1. 3 plus 2 plus 1 is 6. So this question 3 is solved. Now question 4 says 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 sec square pi by 3 is equal to 10. ये अभी sin square 3 pi by 4 को हम लिख सकते हैं pi minus pi by 4 and as this is in second quadrant so we can put the value positive. So 2 sin square pi by 4 plus cos square pi by 4. Cos pi by 4 क्या होता है? Cos square 1 by 2. So 1 by 2 whole square is square root of 1 by 2 square is equal to 1 by 2 and multiplied by 2 this works out to be 1. And
2 sec square pi by 3. Sec is inverse of cos. So pi by 3, if you see pi by 3 cos value, it is 1 by 2. So this will become, inverse will become 2, and 2 into 2 is 4 into 2, 8. So this will be 2, 1 by root 2 whole square plus 1 by 1 plus 8. Say sine square pi by 4. Pi by 4 sine square is equal to 1 by 2 into 2 is square is equal to, this will become again 1. So 1 plus 1 plus 8 is equal to 10. So this is how we have solved all the 4 questions successfully. Now for question number 5. Question 5 is find the value of sin 75. तो sin 75 की वैल्यू तो हमें याद नहीं है टेबल से, इसलिए हम इसको sin 45 प्लस 30 डिग्री करके अपने फार्मूला से निकालेंगे. sin x प्लस y इज इक्वल टू sin x इंटू काज वाई प्लस काज एक्स इंटू काज वाई. अभी साइन में 75 में 45 प्लस 30 किया तो साइन एक्स की वैल्यू है साइन 45 इंटू काज वाई 30 प्लस काज एक्स काज 45 into sin x. Sin x is y is 30 डिग्री. सो अब इसमें कुछ नहीं, इसके वैल्यूज रखना है. तो sin 45 की वैल्यूज क्या है? 1 by root 2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या है? cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 by 2 प्लस cos 45 की वैल्यू है 1 by root 2 इंटू sin 30 की वैल्यू है sin 30 की 1 by 2. सो यदि हम इसको सॉल्व करें तो मिलेगा 3 by 2 root 2 प्लस 1 by 2 root 2. So this will be 3 plus 1 divided by 2 root 2 is equal to 4 by 2 root 2. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड रूट 2 को रूट 2 आ जाएगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. If you solve this, this will be root 3 divided by 2 root 2 plus 1 by 2 into root 2. This will further be root 3 क्योंकि denominator is same, so we can straight it and divided by 2 root 2. So this completes question number 5, number 1. So this way we can see the values. The values are coming to be in line with the table. अभी इसका दूसरा है 10, 15 का वैल्यू निकालना है. 10, 15 का हमें लॉगरिथम टेबल के सिवा दूसरी जगह नहीं मिल सकता, लेकिन हम इससे निकाल सकते हैं. 10, 15 इज इक्वल टू 45 माइनस 30. 10x माइनस वाई होता है 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y. इस प्रकार हम यदि इसमें वैल्यू रखें
10x और 10y की 45 और 30, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। 1045 क्या है? 1045 इज 1 माइनस 10y 30 क्या है? 10 30 है, पाई बाई 6 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y, 10x है 1, 10y है 1/√3। सो ये आ जाएगा 1 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई √3 plus 1 divided by √3. So √3 will get cancelled. So this will be √3 minus 1 divided by √3 plus 1. अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो a² माइनस b² के फॉर्म में लाते हैं, तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ये इसका मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये आएगा √3 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर मीन्स 3 और 1 स्क्वायर माइनस a² माइनस a प्लस b माइनस b विल बी a² माइनस b²। सो दिस विल बी √3 स्क्वायर, दैट विल बी 3 a² 3 and b² is 1 4 plus a² 2 times minus 2 a² into b² 3 divided by 2, and this will be further 4 minus 2 √3 by 2, ये 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 माइनस √3 इसका सॉल्यूशन होगा। So this way we can solve the questions by our formula what we have done. Now next will be question number 6. अभी तक हमने क्वेश्चन 5 तक किया था, अभी क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 को करेंगे। तो इसमें क्या है? प्रूव दैट बोलता है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x इंटू sin π/4 माइनस y इज इक्वल टू sin x प्लस y। अभी इसमें हम फॉर्मूला 2 cos इंटू cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y इन प्लस cos x माइनस y एंड माइनस 2 sin x इंटू sin y इज इक्वल टू cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y, जो हम प्रूव कर चुके हैं वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2 लाना है, तो 2 cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y प्लस 1/2, अगेन ये माइनस को अंदर ले लिए, माइनस 2 sin π/4 माइनस x इंटू sin π/4 माइनस y। इस प्रकार ये हमारा फार्मूला चेंज हो गया इसमें मैच करने के लिए, जिससे हम वैल्यूज रख सकें। cos x प्लस y में क्या है? cos x एंड y में क्या है? 2 cos x एंड y का मतलब है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो हम इसे रखें, इसको x समझे, π/4 माइनस x को, और π/4 माइनस y को y समझे। π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस y प्लस cos π/4 माइनस x माइनस, क्योंकि ये माइनस साइन है, π/4 माइनस y विल बिकम प्लस y। सिमिलरली दूसरे वाले ब्रैकेट में देखें, 1/2 माइनस 2 sin π/4 माइनस 2 sin x इंटू sin y इज इक्वल टू cos x प्लस cos y माइनस cos x इंटू cos y। तो ये 1/2 cos π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस y माइनस cos π/4 माइनस x माइनस π/4 प्लस y। अभी आप देखेंगे तो इसमें cos x π/4 माइनस x π/4 प्लस y, cos x π/4 माइनस x माइनस π/4 माइनस y इज हैविंग
प्लस एंड माइनस साइन, सो दिस टू विल गेट कैंसल्ड। अभी कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा वो cos पाई बाई टू को पाई बाई फोर का पाई बाई टू हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई को माइनस निकाल दिया, एक्स प्लस वाई हो गया, प्लस cos पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई। अभी cos पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों हाफ है, तो दोनों मिला के 2 हो जाएगा, और 2 होने से 1/2 से मल्टीप्लाई होने से ये बराबर 1 हो जाएगा। तो cos पाई बाई टू माइनस cos एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हमें मालूम है साइन एक्स प्लस वाई होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस टेन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। तो इसमें आप देखें टेन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन फाइव 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव, ये फार्मूला होता है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को रखें, तो टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव, टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स, ये टोटल डिवाइडेड बाई टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स एंड 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। ये चूंकि इसका साइन चेंज हो गया है, इसलिए ऊपर में साइन माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 वैल्यू रखें, तो 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स, पाई बाई 4 की वैल्यू 1 रखें, इंटू 1 बाई टेन एक्स, ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स माइनस 1 माइनस टेन एक्स। अभी इन दोनों को देखें, 1 प्लस टेन एक्स न्यूमरेटर में है, 1 प्लस टेन एक्स न्यूमरेटर में है, 1 माइनस टेन एक्स डिनोमिनेटर में है, 1 माइनस टेन एक्स डिनोमिनेटर में है। ये दोनों मिला के 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन 7 प्रूफ हो गया। अभी क्वेश्चन 8 तो बहुत सिंपल है, cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू cos एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एक्स। अभी इसको काट स्क्वायर एक्स के बराबर प्रूफ करना है। cos पाई एक्स होता है माइनस का, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये माइनस cos हो जाएगा, और ये cos माइनस एक्स को cos एक्स ही रहेगा, तो माइनस cos एक्स इंटू cos एक्स, और डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, एंड cos पाई बाई टू प्लस एक्स, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम cot स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार अभी क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस cot एक्स 2 पाई प्लस एक्स, ये दोनों ब्रैकेट में है। इस प्रकार ये सारे चीज़ों का मल्टीप्लाई है। सो अभी देखें, cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, तो साइन ये cos वाला प्लस रहेगा, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। और दूसरा cos 2 पाई प्लस एक्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कुछ नहीं होगा, इसका सेम पॉजिटिव ही रहेगा, cos एक्स रहेगा। तीसरा cot 3 बाई टू पाई माइनस एक्स है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो cot वाला 10 में चेंज हो जाएगा, और ये पॉजिटिव रहेगा, cot 10 में चेंज हो जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा। अभी प्लस साइन एक्स दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन एक्स cos एक्स तो वैसे ही रहेगा, और cot एक्स जो है 2 पाई प्लस एक्स, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और 2 पाई प्लस एक्स इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर नो चेंज इन cot एक्स, तो cot एक्स ही रहेगा।
और इस प्रकार हम देखते हैं साइन एक्स काज एक्स, साइन एक्स बाई काज एक्स, साइन एक्स काज एक्स बाई साइन एक्स। इसमें काज एक्स कैंसिल हो जाएगा, जिसमें साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स होगा, दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस इज प्रूव्ड दैट क्वेश्चन नंबर 9 is also true. Thank you. Now we will continue with the present chapter exercise 3.3 question 1 to 15. Earlier we have completed question 1 to 9. Now 1 to 10, 9 we will complete 10 to 15 now. So question number 10 is sin n plus 1x into sin n plus 2x plus cos n plus 1x into cos n plus 2x is equal to cos x। इसको हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हम दो फॉर्मूला से वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को यदि cos x के बराबर कर देते हैं तो हमारा ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसमें क्वेश्चन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज़ किया। साइन के लिए 2 यूज़ किया और कास के लिए 1 यूज़ किया। -2 sin x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू काज एक्स प्लस काज वाई माइनस काज एक्स माइनस काज वाई। चूँकि यहाँ पे 2 है तो हम इसको 1/2 कॉमन ले लेंगे और 2 sin n प्लस एक्स n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x, ये माइनस बाद में लगाएंगे, प्लस 1/2 2 cos n प्लस 1x इंटू cos n प्लस 2x, ये हमारा होगा। अभी 1/2, अभी इसमें माइनस लिया, माइनस लेने से क्या हुआ कि हमारा ये फार्मूला -2 sin x के बराबर हो गया। cos nx प्लस x cos a प्लस b a माइनस b, a प्लस b में nx प्लस x प्लस nx प्लस 2x a एंड b एंड प्लस cos a माइनस b nx प्लस x माइनस n माइनस 2x। अब इसी प्रकार ये cos n प्लस 1x cos n प्लस 2x को सॉल्व करेंगे फॉर्मूला 1 के मुताबिक। यहाँ भी 1/2 लिया और जिससे 2 हमें कॉमन मिल गया और 2 मिलने से 2 cos x y के इक्विवेलेंट हो गया और इसको cos x प्लस y cos x माइनस y के हिसाब से लिखेंगे। cos nx प्लस x प्लस nx प्लस 2x प्लस cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। अभी इसे देखें तो इसमें nx कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी nx कैंसिल हो जाएगा और इसमें nx कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो ये सॉल्व करने से 1/2 cos 2nx प्लस 3x 2nx प्लस 3x प्लस cos माइनस x, ये माइनस x बचेगा, -2x से प्लस x को घटाएंगे तो प्लस 1/2 cos 2nx प्लस 3x प्लस cos माइनस x यहाँ बचेगा। अभी देखें 1/2 कॉमन निकला हुआ है, इसके बाद ये cos 2nx प्लस 3x प्लस cos माइनस x cos x हो जाएगा और ये cos nx प्लस 3x प्लस cos माइनस x है, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो cos माइनस x बचा प्लस cos माइनस x बचा, माइनस x प्लस x हो जाएगा और इस प्रकार 1/2 इंटू 2 cos x इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू cos x, thus दिस इज इक्वलेंट टू cos x राइट हैंड साइड। यहाँ हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, माइनस साइन लगाने में शायद हमने कुछ गलती की है।
Now we will see question 10, 11 and 12 of exercise 3.3. Earlier day we have completed question 1 to 9. Now today we will prove 10, 11 and 12, 13, 14 and 15 for chapter 3 trigonometric functions maths class 11. So here question 10 says sin n plus 1x into sin n plus 2x प्लस cos n प्लस 1x इंटू cos n प्लस 2x इज इक्वल टू cos x, ये प्रूव करना है। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लें तो उसके बाद इसे देखें कौन से फार्मूला से लगेगा। ये 1 और 2 यूज़ करेंगे तो कर सकते हैं। साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x, ये साइन x प्लस साइन y माइनस से वो इज इक्वल टू cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 2 साइन n प्लस 1 इंटू साइन n प्लस 2 x प्लस ये सेम लिख दिया हमने। अभी इसको करने से माइनस cos n प्लस x cos a प्लस b, cos a है n प्लस 1x, cos b है n प्लस 2x। सो n प्लस x nx प्लस x प्लस nx प्लस 2x इज इक्वल टू cos a प्लस b। एंड माइनस साइन इसमें इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो माइनस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x। अभी एन एक्स इसमें प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा और ये 2x का x बच जाएगा। ये एन एक्स और एन एक्स दोनों जोड़ने से 2nx हो जाएगा और x को 2x और x को जोड़ने से 3x हो जाएगा। तो इस प्रकार इस पहले वाले साइन एक्स वाले का cos x n प्लस 2n प्लस x 2nx प्लस 3x माइनस cos माइनस x ऐसे हुआ। अभी इसी प्रकार दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। cos a प्लस b से cos x एंड cos y इज इक्वल टू cos a प्लस b इन प्लस cos a माइनस b। a प्लस b में वही आएगा cos 2nx प्लस 3x प्लस cos माइनस x। इस सिंपल वे से एक चेंज हो जाएगा। सो अभी देखें हम तो इसमें cos 2nx प्लस cos 3x एंड cos 2nx प्लस cos 3x, ये दोनों 1/2 है और ये दोनों इसका साइन माइनस है इसका साइन प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस साइन है ये प्लस हो जाएगा, तो cos माइनस एक्स इंटू प्लस cos माइनस एक्स, ये दो माइनस एक्स साथ में आ जाएंगे 1/2। इसलिए 1/2 इंटू 2 cos माइनस एक्स cos x होता है, ये cos x के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। अभी क्वेश्चन 11 से cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 sin x। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 6 यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 6 क्या करता है, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। इस प्रकार माइनस 2 साइन x, इसे हम पूरा x लें और इधर y लें, 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। वह दूसरे में 3/4 पाई प्लस x माइनस 3/4 पाई प्लस x डिवाइडेड बाई 2। a प्लस बी a माइनस बी, ये हमने फार्मूला यूज किया माइनस साइन 2x माइनस साइन x प्लस साइन y इज साइन cos x प्लस cos y इज माइनस साइन x प्लस y/2 साइन x माइनस y/2, ये फार्मूला यूज किया। ये माइनस 2 साइन π/4 3π/4 इंटू साइन x बचेगा। ये 3π/4 डिवाइड करने से 2 से 3π/4 2 है इसलिए 1 हो जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू साइन x, इसमें 3π/4 कैंसिल हो जाएगा, 2x/2 होने से साइन x बच जाएगा। अभी
3π/4 की वैल्यू हमें पता है 1/√2, तो -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू √2 -√2 साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दिस इज प्रूव्ड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। हमें ये प्रूव करना है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। इसके लिए साइन ए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं। साइन 6x को हम ए माने और साइन 4x को हम बी माने, तो ए साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। अभी इसे देखें तो क्या आएगा, 2 साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। साइन का फार्मूला देखें, साइन कौन सा फार्मूला, यूजिंग फार्मूला 7th एंड 8th। 7th में साइन x प्लस साइन y है, साइन x प्लस साइन y, एंड 8th में साइन x माइनस साइन y है, साइन x माइनस साइन y। ये क्या है, 2 साइन x प्लस y/2 इंटू काज x माइनस y/2, 2 साइन x 6 प्लस 4/2 x इंटू काज 6 माइनस 4x/2 इंटू 2 काज x प्लस y/2 x प्लस 4/2 इंटू साइन 6 माइनस 4/2 x। अभी इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें 2 साइन 6 की जगह 10/2 हो जाएगा, एंड cos 6 माइनस 4 की जगह 2/2 का x बचेगा। इसी प्रकार 2 cos x 10/2 x इंटू साइन x, इस साइन x बचेगा 6 माइनस 4 2/2x। अभी 2 इंटू 2 साइन 5x इंटू cos x, cos 5x इंटू साइन x। अभी इसमें देखें तो 2 साइन x इंटू cos x इज इक्वल टू साइन 2x, फार्मूला में हमने पहले निकाला हुआ है। तो यदि इसे देखें 2 साइन x 2 साइन 5x एंड cos 5x, 2 साइन 5x cos 5x को लिख सकते हैं साइन 2x इस फार्मूला के मुताबिक। उसी प्रकार 2 cos x इंटू साइन x को लिख सकते हैं साइन 2x, और ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, साइन 2x इंटू साइन 10x। सो दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। थैंक यू। वी विल सी नाउ क्वेश्चन 13, 14 and 15. Cos square 2x minus cos square 6x is equal to sin 4x into sin 8x। ये प्रूव करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड को ले, cos square 2x माइनस cos square 6x को हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2x स्क्वायर माइनस cos 6x स्क्वायर, एंड इसके बाद हमें यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें, a प्लस बी a माइनस बी, cos 2x प्लस cos 6x, cos 2x माइनस cos 6x, यूजिंग फार्मूला 5 and 6 cos x प्लस y cos x माइनस y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y, 2 cos x plus y, 6 plus 2 8/2 is 4, cos x minus y 2 minus 6 is minus 2x, 2 minus 6 is 4 divided by 2 is minus 2x, and यहाँ पे minus 2 sin a plus b/2, 2 plus 6/2 is 4x into sin minus 2 minus 6 is 4 minus 4/2 is minus 2x. So we can't, suppose we take out minus 2 and minus 2 here. So minus 2 into minus 2 cos 4x into cos minus 2x into sin 4x into sin minus 2x। अभी cos का minus 2 हो जाएगा, तो ये cos 2x हो जाएगा, और sin का माइनस टू बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 बचेगा। देन cos 4x इंटू cos 2x एंड sin 4x इंटू sin 2x, क्योंकि sin का माइनस बाहर निकल गया। अभी होता है
2 into 2 4 cos x into sin x into cos 2x into sin 2x। अभी हमें मालूम है sin x into cos x is equal to sin 2x। तो इसके फार्मूला के मुताबिक यदि हम cos 4x और sin x का देखें तो 4 + 2 8 हो जाएगा sin 8x एंड 2 + 2 4x हो जाएगा। ये हमारा राइट हैंड के बराबर होता है। इस प्रकार क्वेश्चन 13 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 14 के लिए sin 2x plus sin 2 sin 4x plus sin 6x is equal to 4 cos square x into sin 4x प्रूफ करना है। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड से ही चालू करते हैं। sin 2x plus sin 6x को एक ग्रुप बनाते हैं, 2 sin x को अलग रखते हैं। तो इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं 7th sin x plus sin y का 2 sin x plus y into cos x minus y। तो 2 sin x plus y 6 plus 2 8 4x into 2 minus 6 minus 2x plus 2 sin 4x। तो ये क्या होगा यदि हम इससे 2 बाहर निकाल लें दोनों से, तो 2 sin 4x cos 2x प्लस यहाँ बचेगा 1 क्योंकि sin x को 2 sin x को बाहर निकाल दिया। अभी cos 2x प्लस 1 क्या होता है? cos 2x का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हम पहले देख चुके हैं। तो इसकी वैल्यू रखें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 4 2 इंटू 2 4 sin 4x इंटू cos स्क्वायर x। तो ये हमारा राइट हैंड साइड को प्रूव करता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 में जाएं। cot 4x इज इक्वल टू sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x हमें प्रूव करना है। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 7 लगाते हैं। इक्वेशन 7 क्या है? sin x प्लस sin y। sin x प्लस sin y में 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। तो ये होगा sin 4x इंटू cos x इंटू 2। अब ये cot 4x है तो cot 4x वही उसको cos 4x बाई sin x करें और sin x कैंसिल हो जाएगा। तो cos 4x 2 इंटू cos 4x इंटू cos x, ये हमने 2 को यहाँ लाना भूल गया। cos 4x बाई sin 4x इंटू cos x, sin कैंसिल हो गया, यहाँ 2 लाना था, ये 2 लाया है, यहाँ लिखा नहीं है, ये 2 cos 4x हो गया। दिस इज राइट हैंड साइड को ले तो cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x। इसमें फार्मूला नंबर 8 लगाएं। 8 में sin x माइनस sin y का 2 cos x प्लस y इंटू sin x माइनस y। इसमें 2 cos x प्लस y 5 प्लस 3 बाई 2 इंटू sin 5 माइनस 3 बाई 2। दिस हैपन्स टू बी cot x 2 cos 4x इंटू sin x। cot x को लिख सकते हैं cos x बाई sin x, sin x कैंसिल हो जाएगा, 2 cos x इंटू cos 4x हमारा ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। इक्वेशन 1 में क्या है? 2 cos 4x इंटू cos x है नंबर 1 और इक्वेशन 2 में भी है 2 cos x cos 4x इज नंबर 2। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस आवर फार्मूला इज आवर इक्वेशन इज प्रूव्ड। थैंक यू। वी विल सी in next session question 11 to 16 to 25. Then this exercise 3 will be complete. Thank you so much.